Good morning. Welcome to Rotary Urja session held by Rotarian Neeru Goyal. And this is for your well being. And all that we want is for you to practice this session every day for 1 hour. And our mission is that 1 hour every day for your own health. This session is brought to you by Rotary International District 3131, and especially Rotary Club of Pune Downtown, Rotary Club of Pune Riverside, and Rotary Club of Pune Deccan Gymkhana. And my name is Rotarian Manju Farke, and I would like to tell you something about Rotary before we begin our session. So at Rotary, we work a lot with youth, and probably that's why it keeps us also very young at heart, of course. And when we say that we work for youth, we work for youth development, developing their personalities, developing their skills, developing their confidence, and so on and so forth. If you really look at the structure of Rotary International, you will see that 5 out of 9 structured programs of Rotary International are based on youth. Let me just take you through all these 5 programs which are based on youth. First is Rotaract, which is for the youngsters in the age of 18 to 30. And what we do with these youngsters is basically develop their personalities, develop their leadership skills, and also sensitize them towards social work and towards this feeling that we owe something back to the society. So that's one program. Second is Interact. This is for the students between the age of 12 to 18, primarily at the school level. Again, same probably an objective is to develop their basic skills, their confidence, their thought processes in the right manner, and of course sensitization towards giving back to the society. The third program which we undertake in Rotary is RYLA, which is RYLA, and the long form is Rotary Youth Leadership Awards. And when I say awards, these are not just awards, but these are the training programs, these are leadership development training programs that we undertake. And there is a structured syllabus which is given by Rotary International. And we conduct these 2 to 3 days of program for the students between the age of 14 to 30, and we take them through various topics of, as I said, personality development, skills development, like time management, presentation skills, public speaking, leadership development, so on and so forth. And as I said, it's a structured program. The fourth program is called Rotary Youth Exchange, wherein these youngsters go on an exchange programs, which is either a short term or a long term. And if you really typically look at a long term program, it is for 1 year. And when these youngsters go to other countries and stay with the parents, which are like their exchange parents, and they stay with them in their family, and those students come and stay with us in our families, and that is how we ensure that they are given this broadening of their horizons. So that is Rotary Youth Exchange for you. And then the last is New Generation Service Exchange, wherein these youngsters who are in various professions are again sent on exchange programs, but these are based on their professional exchanges. So somebody who wants to do an internship in Germany can go to Germany under this program. So these are the kind of programs Rotary International offers under youth. That's the tidbit for Rotary from me to you. Moving on to the trainer, let me introduce the trainer for today, Rotarian Neeru Goyal. And as I've already earlier said, that she's an industrialist, but not only that, she also has interest in fashion designing, art, and her house, if you really look at it, it's an example of her interior decorators and artistic skills, which was again covered on Z. So, and of course, Neeru is a very passionate practitioner of yoga and pranayam, and she has learnt this from none other than Swami Ramdev Ji Maharaj at Haridwar. So, welcome again and enjoy the session. This is for your own health and well-being, and we appreciate your time for yourself. Thank you very much, and over to Neeru. नमस्कार, सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अपने गुरु स्वामी रामदेव जी को नमन करते हुए ये सेशन स्टार्ट करते हैं। सब आज एक
बेसिक सेशन है जिसमें मैं बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें बताने वाली हूँ आप लोगों को कि कैसे हमको छोटी छोटी चीज़ें जो है वो दिमाग में रहती हैं लोगों के कि हम पूछ नहीं पाते हैं या इसको कैसे करें क्या करें, तो वो सारी चीज़ें मैं इस सेशन में कवर करूँगी। तो सबसे पहले हमको ओमकार करना है और ओमकार के लिए कैसे बैठना है। देखिए, मैं अभी सुखासन में बैठी हुई हूँ, ठीक है, लेकिन आप बहुत फर्क फर्क तरीके से प्राणायाम करने के लिए बैठ सकते हैं। पहला है सुखासन, जो लोग इसमें बैठना चाहें वो इसमें बैठे। दूसरा है सिद्धासन, यानी सेंटर में एड़ी रखिए और फिर इस पैर को ऊपर कर लेना है। तो इससे ये सिद्धासन कहलाता है। ये एक पैर ऊपर किया हमने, फिर हम एक पद्मासन लगा सकते हैं। इस तरह से धीरे से ये पद्मासन लग गया। आप नोटिस करेंगे जो लोग पद्मासन लगा पा रहे हैं मेरे साथ साथ, उनको नोटिस होगा कि उनकी कमर सीधी होती जा रही है, कमर फिर नीचे झुकने के चांसेस कम हो जाते हैं। अभी तीसरा आसन मैंने आपको बताया, चौथा आसन है वज्रासन, जिसमें पीछे की तरफ इस तरह से पैर लेकर तब बैठना है। ये आसान नहीं होता, बहुत लोग जिनको प्रैक्टिस नहीं होती उनके लिए वज्रासन करना आसान नहीं होता, लेकिन उसकी प्रैक्टिस डालेंगे तो ये एक ऐसा आसन है जो डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है। और आप खाने के बाद भी कर सकते हैं इसको। जब भी आप खाना खाते हैं, टीवी देखते हैं, उस टाइम अगर आप वज्रासन में बैठ जाते हैं तो बहुत अच्छे से आपका खाना डाइजेस्ट हो जाता है और आप फ्रेश फील करते हैं। इसके अलावा एक पांचवा आसन भी है जो कि प्राणायाम करने के लिए आप लगा सकते हैं, और वो है चेयर पे बैठना। चेयर पे अगर कुछ लोग हैं ऐसे जो नीचे नहीं बैठ सकते, तो उन लोगों को कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वो लोग अगर चेयर पे बैठ के भी ये एक्सरसाइजेस करेंगे, प्राणायाम करेंगे, तो उनको भी बहुत बहुत फायदा होगा। तो अभी पहला है ओमकार। ओमकार कैसे करना है? ओमकार से पहले आपको मुद्रा लगानी है। मुद्रा, मैं थोड़ी सी मुद्रा यहाँ बताऊंगी। अगर आप गूगल पे जाएंगे तो पूरा का पूरा भंडार है मुद्रा का, और उसमें अगर आप ये 3-4 मुद्रा पकड़ लेते हैं और फरक प्राणायाम के टाइम फरक मुद्रा लगाते हैं तो वो बहुत अच्छा रहेगा। तो पहला है ज्ञान मुद्रा या ध्यान मुद्रा। इसमें अंगूठा और ये उंगली जोड़ लेनी है और बैठ जाना है। इससे आदमी, ये पूरे शरीर को एक सेंसर मिलता है कि दिमाग वश में आए, यानी कि हमारा मन जो इतना चंचल है कि कहीं भी भाग लेता है, वो कहीं भी भागना बंद करे। और इस समय जो प्रेजेंट मोमेंट में हम काम करने जा रहे हैं, जो एक सेहत के लिए एक यज्ञ करने जा रहे हैं, वो पूरे अच्छे से माइंड एंड बॉडी के योग से हम कर पाए। हम कहीं और ध्यान नहीं दें। इस टाइम पे जब हम प्राणायाम करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, तो माइंड को वश में रखना बहुत ज़रूरी है। आपको अंदर कैसा फील हो रहा है, आपकी सांस जब आप ले रहे हैं तो कहाँ कहाँ जा रही है, आप कैसे हीलिंग कर सकते हैं, ये सब हम अपने प्राणायाम सेशन में बताते हैं। आज का बेसिक वो है, उसमें ध्यान मुद्रा। दूसरी मुद्रा है सूर्य मुद्रा। ये जो है ये मुद्रा से आपके गले के ऊपर के जितने रोग हैं, मान लो किसी को माइग्रेन है या कान में दर्द होता है, नाक में कुछ प्रॉब्लम है, गम्स में कुछ प्रॉब्लम है, तो वो लोग अगर लगाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आकाश मुद्रा इसको बोलते हैं, आकाश मुद्रा। आकाश मुद्रा, इसके बाद आप पृथ्वी मुद्रा पे आएंगे। पृथ्वी मुद्रा, ये जो पृथ्वी मुद्रा है, ये अपने बॉडी के वेट को कंट्रोल करती है। वेट यानी कि अगर आपका वजन बहुत ज़्यादा है तो भी वजन कंट्रोल में रहेगा, और कम है तो भी बढ़ जाएगा। कम वजन वालों को वजन बढ़ाना बड़ा मुश्किल होता है, तो ये वेट की बैलेंसिंग होती है। ये जल मुद्रा है।
ये जल मुद्रा है। इससे स्किन बहुत अच्छी हो जाती है और ग्लोइंग स्किन मिलती है। अभी हमने ध्यान मुद्रा लगाई, उसके बाद आकाश मुद्रा, पृथ्वी मुद्रा, जल मुद्रा, ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा अगर आप ये तर्जनी उंगली को, ये वाली उंगली को अगर अंगूठे के नीचे रखते हैं और इस तरह बैठते हैं तो आपका पेन गायब हो जाता है। सो ये भी आप ध्यान से देखिए, आपको कभी ऐसी ज़रूरत पड़े तो आप ये वाली मुद्रा लगा सकते हैं। तो हम ध्यान मुद्रा से स्टार्ट करेंगे। ओंकार कहना, आप कोई भी आसन ले लीजिए जो आपको सूट करता हो। ओंकार को अल्टीमेट साउंड कहा गया है। जब सृष्टि की शुरुआत हुई थी उस समय जो साउंड क्रिएट हुई थी वही ओंकार कहलाती है। तो अभी ओंकार को कैसे कहना है, आपको 20% अ, फिर ओ और उसके बाद माँ, ऊ को 60% और माँ को 20%। सो 20%, 60% और 20%, इस तरह से अपने ओंकार को करना है। ये किसी की आवाज़ आ रही है, कोई म्यूटेड नहीं है शायद, विच इज़ डिस्टर्बिंग मी। सो प्लीज म्यूट करिए अपने आप को। सबने म्यूट कीजिए। नीरू जी के अलावा सबने अपना ऑडियो म्यूट कर दीजिए। या ओंकार को 3 पार्ट्स में डिवाइड करके अपने माइंड में डिवाइड करके अब हम 2 बार और करेंगे ओंकार, और उसी तरह से ध्यान देते हुए 3 पार्ट्स में। जब हम ओंकार करते हैं तो पहला ओ जब बोलते हैं तो हमारे थ्रोट पे थोड़ा प्रेशर आता है, जब ऊ बोलते हैं तो चेस्ट पे प्रेशर आता है, और जब माँ बोलते हैं तो नाभि पे प्रेशर। ये तीनों प्रेशर आप महसूस करिए। फिर से एक बार बोलेंगे। You're a bitch. इस तरह से हमने ओंकार किया, पूरा समझते हुए, अपने अंदर ढालते हुए, इसी तरह से पूरे दिमाग के साथ, अपने मन के साथ, अपने पूरे मन प्राण के साथ रहना है, और तब ये प्राणायाम यज्ञ करना है, जो कि अपनी सुंदर जीवन के लिए बहुत ही अच्छा रास्ता है जो आप अपना रहे हैं। अभी हम सूर्य नमस्कार के लिए खड़े हो जाएंगे। हम 12 स्टेप में करते हैं, तो पहले सीधे खड़े हो जाएंगे। 12 स्टेप में करने के लिए हाथ जोड़ेंगे। मैं साइड से दिखा रही हूँ जिससे कि आप ठीक से देख पाएँ, लेकिन जो लोग नहीं देख पाएंगे, अभी भी उनको कोई कन्फ्यूजन होगा, तो वो गूगल पे प्राणायाम के उसमें सूर्य नमस्कार के थ्रू देख सकते हैं। उनके प्रोफेशनल कैमरे से आपको बहुत अच्छे से सारे स्टेप पता चलेंगे। 1 2 3 4 5 6, घुटने टेक देने हैं, और अब नाक और माथा लगाना है, और फिर उसको रोल करते हुए ऊपर लाना है। ये 7 हो गया, ये भुजंगासन। उसके बाद हमको माउंटेन लगाना है, जिसमें एड़ी नीचे रख देनी है, एड़ी को नीचे ले जाने की कोशिश करनी है। उसके बाद 9 पे हम लोग ये वही पैर आगे लाएंगे जो हम पीछे लेकर गए थे, वही पैर हमको आगे लाना है। ये हमारे दोनों हाथ के बीच में टारगेट होना चाहिए। सबका मुझे मालूम है नहीं आएगा इतना, जैसा भी आपसे होता है वो ठीक है, लेकिन कोशिश यही रहनी चाहिए कि जितना आगे ला सके। उसके बाद आप दूसरा पैर भी ले आइए, टो टचिंग हो गई। उसके बाद 11 और 12। अब मैं पास करके बताऊंगी
और उसमें सांस का भी ध्यान रखना है। सिर्फ 6 नंबर पे हमें सांस नहीं लेनी है, मैं बाकी आपको बताती हूँ। 1 गहरी सांस, 2 3 एक्सेल, 4 इनहेल, 5 एक्सेल, 6 पे कुछ नहीं, 7 पे माथा अपना नीचे रख के रोल करते हुए इस तरह से 7, 8 पे इन एक्सेल, 9 पे इनहेल, 10 पे एक्सेल, इनहेल एंड आउट। सो ये हमारा सूर्य नमस्कार हुआ। सूर्य नमस्कार हम 20 बार तक कर सकते हैं। यहाँ पर समय की कमी के लिए हम सिर्फ 2 बार करते हैं, लेकिन आप अगर मेरे वीडियो के साथ आप अपना ये प्राणायाम सेशन कर रहे हैं तो आप इसको स्टॉप करके जितनी बार आपका मन है वो करिए। इसमें बहुत सारे आसन हैं और इससे बदन एकदम खुल जाता है। सूर्य नमस्कार से एक और फायदा ये होता है कि आपके नाक के जो नॉस्ट्रिल है, जब हम शुरू में प्राणायाम की कोशिश करते हैं या शुरुआत करते हैं तो नॉस्ट्रिल्स अक्सर बंद रहते हैं, एक इधर का रहे या दोनों रहे, तो ये भी सूर्य नमस्कार से खुल जाते हैं। इसका ये बहुत बड़ा फायदा होता है। अब हम पहला प्राणायाम करेंगे भस्त्रिका। यहाँ मैं आपको याद दिलाना चाहूँगी कि जिस चीज़ को भी हम सीक्वेंस वाइज याद कर लेते हैं वो हमारे लिए इजी हो जाती है। और हमें किसी चीज़ को करने के लिए अगर किसी वीडियो की या टीचर का आसरा लगता है, उसकी डिपेंडेंस है, तो वो मुश्किल लगती है। तो मैं चाहती हूँ कि आप अपने माइंड में सबसे पहला स्टेप है कि इसका सीक्वेंस याद कर लें। सीक्वेंस याद करते ही आपको ये 50%, 70%, 60% आसान लगने लगेगा। तो सीक्वेंस की बहुत ज़रूरत है। अपने मन में पहला प्राणायाम है भस्त्रिका। भस्त्रिका में हमको लंबी सांस लेनी है और लंबी छोड़नी है। ये एक सा ड्यूरेशन होना चाहिए और रुकना नहीं है। वो जब हम करेंगे तो रुकेंगे नहीं। गहरी सांस लेना शुरू करिए। चेस्ट को एक्सपैंड करके सांस लेना है। ये प्राणायाम अपने फेफड़ों की पावर को बढ़ाने के लिए, लंग्स पावर पूरी की पूरी चेंज हो जाएगी आपकी। सांस की आवाज थोड़ी आनी चाहिए आपको। आप सुन सकते हैं मेरी आवाज भी। चेहरे पे कोई टेंशन नहीं, बहुत ज़्यादा एफर्ट डालने की या टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अपना फेस बिगाड़ने की ज़रूरत नहीं है, माथे पे कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। हर चेहरे पे हल्की सी हंसी और उसके साथ भस्त्रिका करना है। ये रक्त शुद्धि का प्राणायाम है, आप लोग करते रहिए। जब मैं आपको कुछ बातें भी बता रही हूँ तो आप गहरी सांस लेते रहिए। गहरी सांस ही लेनी है ना, तो उसको रोकिए मत। अगर आप बहुत थक जाते हैं तो आप आराम कर लीजिए। तो फिर से करेंगे। हमारे लंग्स में 8 करोड़ सेल्स है, ऐसा कहा जाता है। उसमें से जब हम नॉर्मल सांस लेते हैं तो 25% सेल्स वो तो टोटली डॉर्मेंट ही रहते हैं। सिर्फ 50%, 40% यही एक्टिव रहते हैं। तो नॉर्मल ब्रीदिंग को हमें इस समय तोड़ना है और गहरी सांस लेनी है। गहरी सांस लेनी है, कॉन्शियसली लेनी है, सांस पे ध्यान देकर लेनी है। तो ये भस्त्रिका में खास बात है जो आपको याद रखना है। कमर एकदम सीधी होनी चाहिए, चेहरे पे थोड़ी हंसी होनी चाहिए। सांस लीजिए। जब ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन हमारे अंदर जाता है, गहरी सांस हम लेते हैं, तो हमारे ब्लड में जो रेड सेल्स हैं
उनकी संख्या बढ़ने लगती है। और इसके अलावा हमारी स्पीड, जो रक्त संचार की स्पीड है वो भी बढ़ जाती है। तो मैं यहाँ ये भी कहना चाहूँगी कि जो लोगों को ब्लड प्रेशर है या जिन लोगों को अस्थमा की बीमारी है, उन लोगों को ज़रा संभाल के शुरू करना है। अगर आप बिगिनर हैं तो आपको बहुत ज़्यादा गहरी सांसें नहीं लेनी है, पहले धीरे धीरे लीजिए। जब आपकी बॉडी में ताकत आ जाए तो आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से बढ़ाते जाइए। हमें कोई भी जल्दी नहीं है। लाइफ में सिर्फ 1 घंटा अपनी सेहत को आपने रेगुलर तरीके से दिया तो खुद ब खुद आपका शरीर ऊर्जा से भर जाएगा, खुद ब खुद आपके लंग्स में ताकत आ जाएगी, खुद ब खुद आपका ब्लड प्रेशर ठीक होता चला जाएगा। लेकिन यहाँ पर मैं आपको हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि डॉक्टर्स को बाईपास नहीं करना है। आपकी जो मेडिसिन चल रही है, जो भी कुछ चल रहा है, जो आपके टेस्ट ज़रूरी हैं वो सब कराते रहिए। लेकिन आपको इतनी न्यूज़ ज़रूर मिलेगी कि जब आप नेक्स्ट टेस्ट कराएंगे तो आपको अपनी सेहत में ज़मीन आसमान का फ़र्क मिलेगा। अगर आप 1 महीना लगातार प्राणायाम करते हैं, संभाल के करें। ऑक्सीजन भरपूर लेना है, भगवान की देन है, और सोने से भी ज़्यादा मूल्यवान है जो फ्री मिलता है, हम उसकी कदर नहीं करते हैं। इस समय भगवान को शुक्राना देते हुए ये आप भस्त्रिका करेंगे तो एक अलग मूड में आ जाएंगे, अलग एक माइंडसेट पैदा होगा कि हम कितनी सुंदर दुनिया में रह रहे हैं। तो यही महसूस करते हुए गहरी सांस, जितनी लंबी सांस आपने इनहेल किया है उतना ही लंबा आपको एक्सहेल करना है। अभी छोड़ देंगे। अभी हम बीच में जब हम प्राणायाम करते हैं तो हम पैर थोड़े जुड़ जाते हैं, तो उनके लिए हम थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज करते हैं। तो तितली आसन, ये तितली आसन, ये पैरों को जोड़ लीजिए और फ्लैप करिए। इससे हमारा यहाँ का जो जॉइंट है उसमें कैल्सिफिकेशन हर दिन होता है, लगातार होता है, वो कैल्सिफिकेशन खुल जाता है और हम ये फ्लैप कर पाते हैं। ये देखिए, मेरी आवाज सुनिए, देखिए। सो ये अगर आपका खुला हुआ है जॉइंट तो आपको तितली आसन करने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर आपका ये नहीं खुला हुआ है और आप नहीं कर पा रहे हैं तो चिंता मत करिए, धीरे धीरे अपने आप हो जाएगा। डोंट वरी एट ऑल। अभी हम दूसरा प्राणायाम की तरफ ध्यान देंगे। कपालभाति करनी है। कपालभाति के लिए हमको ऐसा महसूस करना है कि हमारे यहाँ पर एक मच्छर बैठा हुआ है या मक्खी बैठी हुई है और हमने उसको भगाना है अपनी सांस से। सो गहरी सांस हम लेंगे नहीं, लेने से स्टार्ट नहीं करेंगे, हम उसको छोड़ेंगे, एकदम से बाहर सांस छोड़ेंगे। और आप लोग नोटिस करेंगे कि हमारी सांस अपने आप खुद ब खुद अंदर आएगी। आप सिर्फ बाहर छोड़ने पे ध्यान दीजिए। पेट बाय डिफॉल्ट अंदर जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको वहां भी ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ये कपालभाति जब हम प्राणायाम करते हैं तो ये हमारे सारे के सारे प्राणायाम जो हम इस 8 प्राणायाम की सीक्वेंस आपको बताने जा रहे हैं उसमें से रॉयल प्राणायाम कहलाता है, क्योंकि हर बीमारी का इलाज यही है। हमारी वेलनेस का पूरा इलाज ये कपालभाति और अनुलोम विलोम है। जब कोई बड़ी बीमारी होती है तो इसके लिए 15-15 मिनट, 20-20 मिनट ये सुबह शाम कराया जाता है। अगर आप हरिद्वार के हॉस्पिटल्स में जाएं
तो वहाँ पर बड़ी बड़ी बीमारियों का जो इलाज किया जाता है उसमें ये 2 प्राणायाम मेनली कराए जाते हैं। तो आपको जो भी कुछ प्रॉब्लम है, अभी कोई एलिमेंट है या हमारी लाइफ में एज के साथ कुछ ना कुछ बीमारियां हमें घेर ही लेती हैं, वो सब की जड़ शुरुआत होती है 5-10 साल पहले, तब वो सरफेस करती हैं। तो हमारे अंदर जो भी बीमारी है, जो भी नेगेटिविटी है, अपने टेम्परामेंट की नेगेटिविटी है, वो सब हमें बाहर फेंकनी है। तो ये भावना से हम फिर से करेंगे। ध्यान दीजिए, जो लोग आज ही ज्वाइन कर रहे हैं वो आँख खोल करके मेरे को ऑब्जर्व करिए, बाकी लोग जो पुराने हैं वो करते रह सकते हैं। करीब 1 सेकंड में एक बार, ये स्पीड ठीक रहती है। आप जल्दी या धीरे दोनों तरह से कर सकते हैं, आपको जैसे सूट करे, लेकिन 1 सेकंड में एक बार, दिस इज द थंब रूल। जो लोग ब्लड प्रेशर और एस्थमा के मरीज हैं या प्रेग्नेंट लेडीज हैं, वो इसको धीरे, बहुत धीरे करेंगी, बहुत धीरे से स्टार्ट करेंगी। जितनी अपनी कैपेबिलिटी है, अपने को आंकिए, अपने को देखिए और उसी हिसाब से प्रेशर दीजिए। ज़्यादा प्रेशर मत दीजिए, कोई जल्दी नहीं है हमको। हम धीरे धीरे से अपने बॉडी में जान लाएंगे, ऊर्जा लाएंगे और अपने आप से वो गहराई आ जाएगी जिस गहराई से आप करना चाहते हैं। मन शांत रखिए, फेस पे थोड़ी सी हंसी रखिए। उसके साथ साथ ही हमको ये प्राणायाम आनंदित होते हुए करना है। आनंद एक ऐसी अलग सी ऊर्जा है जो कि अपने जीवन में एक आदत भी बना देती है। अगर आप आनंद के साथ अभी बैठे हैं तो आप क्लियरली नोटिस कर पाएंगे कि आपको कब टेंशन आई। इस समय आप कोशिश करके पूरे पूरे के पूरे ब्लिसफुलनेस में रहिए। यहाँ पर लोगों से कभी कभी गलती हो जाती है, वो इस तरह से करना शुरू करते हैं। ऐसे नहीं करना है, आपको छोड़ना है पहले। अपने आप अपनी ऑक्सीजन जो वातावरण में है वो अपने आप में खुद अपने अंदर जाएगी। तो ये हमारा कपालभाति हो गया। हमने कपालभाति 2 प्राणायाम किए हैं। अब हम लेग एक्सरसाइज करेंगे जो कि सूक्ष्म क्रिया कहलाती है। हमारे सीक्वेंस में एक प्राणायाम, एक सूक्ष्म क्रिया। तो इस तरह से आप पैर रखिए, 1 2 पूरे 4 से 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 रोल करिए, 2 3 4 5 रिवर्स, 3 4 5। अभी आपको ये जो अपने घुटने हैं उसके नीचे जो एक गैप आता है उसको नीचे से टच करने की कोशिश करिए अपने इस पोर्शन से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी आप ये जो आपकी उंगलियां हैं इसमें भी जॉइंट्स हैं,
ये सब जॉइंट्स हम खोल रहे हैं, हर बॉडी के पार्ट के जॉइंट्स खोल रहे हैं। हमारे नीज में जो जॉइंट्स हैं, अपने पैरों में, इस अपने पैर के बीच में टखने पे, ये सारे जॉइंट्स हम खोल रहे हैं। तो जोर से करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अभी फिर से बैठ जाएंगे। हमारा ये जो सेशन है ये मेनली प्राणायाम सेशन है, लेकिन हम बीच में जो आसन कर रहे हैं आप नोटिस करेंगे कि आपके बॉडी का एक एक पार्ट को एक्सरसाइज मिलेगी। ज़रूरी नहीं होता कि हम बहुत दौड़ भाग उछल कूद करके जो हम एक्सरसाइज करते हैं, जो हमें मुश्किल लगती है वही हमें फ़ायदा देती है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये जो हम बीच में सूक्ष्म क्रिया बताते हैं, इससे हमारे बॉडी की एक्सरसाइज और इंटरनल एक्सरसाइज दोनों पूरी हो जाती है। तो कभी आप जिम जाना चाहें तो ज़रूर जाइए, लेकिन प्राणायाम का एक अलग महत्व है। और इसके बीच में जो शॉर्ट क्रिया हम कराते हैं वो इसीलिए कराते हैं कि हमें, अगर हम जिम नहीं भी जा रहे हैं तो हमारे बॉडी को पूरी एक्सरसाइज मिल जाए। तो अब हम करेंगे बाह्य प्राणायाम एंड अग्निसार। ये हमारा तीसरा प्राणायाम है। मेरे साथ साथ करिए। जो लोग पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं वो आँख खोल कर करेंगे। तो गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और अभी 3 बंद लगा लेंगे। गर्दन को नीचे टिका लेंगे और नाभि से पेट को खींच लेंगे और रेक्टम को खींच लेंगे, मूल बंद। तो जलंधर बंद, उद्यान बंद और मूल बंद। पूरा फील करिए, पूरे बॉडी को खींच के रखना है। फिर सीधे हो जाइए। अब गहरी सांस छोड़िए, तीनों बंद फिर से लगा लीजिए, बैठ जाइए। सीधे हो जाएंगे। गहरी सांस छोड़िए, तीनों बंद लगाइए, खूब कस के लगाइए और करीब करीब 10 सेकंड तक हम इस बंद को लगा के रखते हैं। लेकिन जो लोग कम लगा पाए वो कम लगाइए। अस्थमा के लोगों को परेशानी होगी तो वो जल्दी खोल सकते। सीधे हो जाएंगे। ये हमने बाह्य प्राणायाम किया। अब हम अग्निसार करेंगे। वो भी ऑलमोस्ट इसी तरह से है, सिर्फ हमें उसमें पेट को हिलाना है। तो नोटिस करिए, गहरी सांस छोड़िए। अभी तीनों बंद और फिर पेट को हिलाना। फिर से छोड़िए। ये हमारा तीसरा प्राणायाम पूरा हुआ। अब हम हैंड एक्सरसाइज करेंगे। हाथ में भी हर जगह हमारे जॉइंट है, हर जगह जॉइंट है जो हमें एज बढ़ती एज में बहुत परेशान करते हैं। इवन उंगलियों में भी हमारे बहुत दर्द रहने लगता है। तो सब के लिए अंगूठे को अंदर करिए, ये इस तरह से रखिए और फिर नकल्स को टच करिए। पूरा नकल्स टच करिए। हाथ बिल्कुल सीधे रहने चाहिए। आपको पता चलेगा कि किस तरह से आपकी मसल्स पूरी खिंच जाती है। ठीक है, कमर बिल्कुल सीधी रहेगी। नाउ रोल इट 1 2 3 4 5। रिवर्स 2 3 4 5। अपने हाथ यहाँ रख लीजिए, कोहनी को टच करिए, कान को टच करिए और इस तरह से पूरा 0 बनाइए। 3 4 5। अब आप इस तरह से अपना हाथ पकड़ लीजिए, इस तरह से और पीछे लेके जाइए। पूरा पीछे लेकर जाइए जितना ले जा सकते हैं। गर्दन बिल्कुल टेढ़ी नहीं करनी है। गहरी सांस और अब एक तरफ खींच लीजिए, एक हाथ को खींच लीजिए। ये आपके कंधे के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। गर्दन को टेढ़ा नहीं करना है, इस तरह झुकना नहीं है, सीधा रहना है, सीधा रहना है। नाउ सेंटर, गहरी सांस
दूसरी तरफ खींचिए, जितना आप हाथ को खींच सकते हैं उतना खींचिए, लेकिन गर्दन सीधी रहेगी। बहुत सारे लोगों को पता चलेगा कि आपके कंधे की जो जॉइंट है वो कितना जुड़ जाता है कि आप नहीं कर पाते हैं उसको। गहरी सांस, जितना आपसे होता है आराम से उतना करिए, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। धीरे धीरे अपने आप जब जॉइंट्स खुलने लगेंगे, आप फ्लेक्सिबल होने लगेंगे और आपको सारे के सारे प्राणायाम और सूक्ष्म क्रिया आ जाएंगी। फिर से गहरी सांस, ये भी 10 सेकंड के करीब तक हमको बंद लगाना है, सांस न लेना है न छोड़ना है। हमारे अंदर ऑक्सीजन है वो घूम के हमको हील कर रही है, इस तरह से हमको महसूस करना है। सेंटर, अभी आप दोनों हाथ इस पे रख लीजिए, इस तरह से 3 4 5, रिवर्स 2 3 4 5। ये हमारी चौथी शॉर्ट क्रिया थी। अब हमारी 5वीं शॉर्ट क्रिया हम करने जा रहे हैं। इस तरह से पूरे के पूरे पैरों को जितना आप फैला सकते हैं फैलाइए और फिर हम चलें। 1 2 3 4 5, रिवर्स 2, कोहनी मुंडी नहीं चाहिए, 3 4 5। जैसा मैं बार बार कहती हूँ, अपने वॉचमैन खुद बनना है। को ये करते हुए, सूक्ष्म क्रिया करते हुए किस तरह से हम इसका पूरा का पूरा फायदा उठा पाए, ये आपके खुद को समझ आएगा कि किस तरह ठीक से बैठना है, किस तरह झुकना नहीं है। पर आप खुद की तरफ पूरी तरह से ध्यान देकर करिए। अभी हम एक शॉर्ट क्रिया हमने कर ली है। अब हमारा अनुलोम विलोम, इस तरह से 2 उंगली और ये अंगूठा, ठीक है। इसके साथ पहले नॉस्ट्रिल बंद करिए, एक नॉस्ट्रिल सीधे साइड वाला और फिर लेफ्ट साइड से गहरी सांस, फिर इसको बंद कर लीजिए और छोड़िए ऑपोजिट साइड से। अब यहीं से ले लीजिए और दूसरी तरफ से छोड़िए, फिर वहीं से ले लीजिए। यानी कि जिधर से आप सांस छोड़ रहे हैं उसी नॉस्ट्रिल से आपको इनहेल कर लेना है। इसमें भी हल्की सी सांस की आवाज़ आनी चाहिए। इससे आपके अंदर की जितनी पाइपलाइन है, जितने ब्लॉकेट्स हैं वो खुलते हैं। ये प्राणायाम का बहुत बड़ा महत्व है। ये तक कहा जाता है, आप करते रहिए करते रहिए। ये कहा जाता है कि हृदय रोगियों पर भी जो ब्लॉकेट्स होते हैं वो अगर लगातार सुबह शाम इस प्राणायाम को करते रहे तो उनके ब्लॉकेट्स भी खुलने लगते हैं, उनका ब्लड प्रेशर ठीक होने लगता है। ब्लड प्रेशर वाले लोगों के लिए ये रामबाण है। ये आप सुबह शाम करिए और देखिए कि कितना फ़र्क आता है। मैं यहाँ ये बिल्कुल नहीं कह रही कि आप ब्लड प्रेशर की दवाई लेना बंद कर दीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये वाला प्राणायाम प्रेग्नेंट लेडीज़ भी बहुत अच्छे से कर सकती हैं। ये आपको मन को बहुत शांति देता है, अपना मन शांत होता है और साथ में मन केंद्रित भी होता है। हम जो काम कर रहे हैं ये ध्यान लगाने के लिए बहुत अच्छा प्राणायाम स्टार्ट। आप लोग जो कर रहे हैं करते रहिए। अभी ये जो प्राणायाम है ये 10 मिनट कपालभाति और 10 मिनट अनुलोम विलोम, ये एक जोड़ी है। इसको आप 10 मिनट से 15 मिनट तक भी ले जा सकते हैं, लेकिन शुरू में 3 मिनट से स्टार्ट करिए। एक दिन 3 मिनट, उसके बाद 4 मिनट, 5 मिनट, फिर 5 मिनट एक हफ्ता, फिर उसके बाद बढ़ाना शुरू करिए। तो ऐसे धीरे धीरे आप देखोगे कि आपकी ताकत में एक अलग तरीके की ऊर्जा भर जाएगी। आप अलग तरीके से अपना दिन एंजॉय करने लगेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन जो हमारे अंदर जा रही है और वो भी कंट्रोल तरीके से, उसका बहुत फायदा होता है। दैट इज मैजिकल।
गहरी सांस लेनी है, और गहरी भी वही बात है, इनहेल एंड एक्सहेल, वो जो पीरियड है वो सिमिलर होना चाहिए। यानी कि इनहेल अगर आप 8 सेकंड कर रहे हैं तो 8 सेकंड ही एक्सहेलिंग में लगाइए, और बहुत शांति से करनी है, इंजॉय करते हुए। प्राणायाम करते करते अपनी अंदर की ऊर्जा के साथ खो जाना, यही इतना सुख देता है। आपकी ऑटोमेटिकली एक ब्लिसफुलनेस जो आती है वो आपको रोज प्रेरित करेगी कि आप 1 घंटा प्राणायाम में जरूर बैठें। अपने आप खुद ब खुद, पहले पहले थोड़ा अपने आप को भी पुश करना पड़ता है, लेकिन धीरे धीरे अगर आप प्राणायाम नहीं करते हैं तो दैट डे यू डोंट फील नाइस। अभी हम शॉर्ट क्रियाएं करेंगे, वो है गर्दन की एक्सरसाइज। हाथ रख लीजिए माथे पर, गहरी सांस, पुश करिए, हाथ से माथा, माथे से हाथ, पूरे फोर्स के साथ। ये आपकी गर्दन की जितनी भी सिस्टम है उसको स्ट्रेंथनिंग के लिए बहुत अच्छा है। आजकल कंप्यूटर टाइम पे, फोन के टाइम पे ये सुबह शाम कर ले तो बहुत अच्छा रहेगा। हमने सर के बिल्कुल बीचों बीच रखा है हाथ, और हम पुश कर रहे हैं नीचे टेल बोन तक। आप महसूस करिए ये प्रेशर। बैक पे रखेंगे, बैक में बिल्कुल कान की सीध पर अपना हाथ रखिए, गहरी सांस, पुश, थोड़ी पर इस तरह से हाथ फैलाकर गहरी सांस, पुश, अभी आपको कान और आंख के बीच में जो हिस्सा है वहां पर हाथ रखना है, गहरी सांस, पुश, दूसरी साइड, गहरी सांस, पुश, आप गर्दन को घुमा लीजिए, रोटेट इट नाइसली, एक कंधे से दूसरे कंधे नीचे। अभी हमारी ये शॉर्ट क्रिया खत्म हुई। अब हम लेंगे उज्जाई। उज्जाई जो है वो थोड़ा सा ट्रिकी है, अंदर थ्रोट के लिए ये प्राणायाम होता है। यानी कि थ्रोट को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, नाक से गहरी सांस लेंगे और बंद लगा के बैठ जाएंगे। जैसा कि मैंने पहले आपको बंद लगाने की बात की, 3 बंद हम लगाएंगे और बैठ जाएंगे। लेकिन इस बार सांस अंदर है, पहले हमने सांस को बाहर फेंका था, तो इस बार ये बंद का तरीका थोड़ा सा फर्क है। जरा समझदारी से करिए और धीरे करिए, नहीं तो खांसी आती है। तो देखिए, पहले जो नए बिगिनर्स हैं वो पहले ऑब्जर्व करें। एक बार और मैं दिखाती हूँ।
तरह से 3 बार हमने ये किया। जिन लोगों को खांसी आती है या जिनको प्रॉब्लम हो रही है वो धीरे धीरे भी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। रात को बैठ के भी आप थोड़ी प्रैक्टिस करिए। ऐसे देखिए, गले को कॉन्ट्रैक्ट करके अंदर ही अंदर सांस लेनी है। सांस नाक से लेनी है लेकिन गला कॉन्ट्रैक्ट करके आवाज निकालेगा। तो ये कबूतर की जैसी आवाज हमने निकाल के प्रैक्टिस करनी है, फिर वो लंबी सांस में बदलनी है। तो इस तरह से हमारे उज्जाई प्राणायाम हुआ, यानी कि 5 प्राणायाम हमने कर लिए। अब हम मेडिटेशनल 3 प्राणायाम करेंगे। उसके लिए पहला है भ्रामरी, दूसरा है उद्गीत। उद्गीत वही वैसे ही करना है जैसे मैंने आपको बताया, ओंकार। और उसके बाद शांति से बैठ जाना है। तीनों के टाइम पर आँख नहीं खोलनी है, शांति से बैठ के अपनी आँखों, अपने पूरी सांसों को ऑब्जर्व करना है। आँख बंद रहेंगी, शांति से बिल्कुल अपनी सांसों को ऑब्जर्व करिए। उसको प्रणव बोलते हैं। तो भ्रामरी, उद्गीत एंड प्रणव। सबसे पहले भ्रामरी। भ्रामरी में जीभ को फोल्ड कर लेना है। ये डायरेक्ट मेंटल एक्सरसाइज है, यानी कि जिसका माइंड थोड़ा सा कमज़ोर होता है, ब्रेन में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, उनको भी भ्रामरी प्राणायाम बहुत फ़ायदा देता है। और अदरवाइज ऑल्सो इट इज़ वेरी गुड फॉर योर कॉन्सेंट्रेशन। और स्टडीज़ में बच्चों को अगर आप सिखा दें तो बहुत अच्छा उसका रिजल्ट आपके सामने आएगा। सो जीभ को फोल्ड करना है, 3 उंगली यहाँ पर रखनी है, 1 उंगली भौं के ऊपर रखनी है। कान की लीड दबा के बंद कर लेनी है जिससे आपको कोई आवाज़ बाहर की नहीं आए। 3 बार करेंगे, अंदर ही अंदर हमिंग करेंगे। जीभ फोल्ड करिए, बंद कर लीजिए मुंह और ओंकार कहिए। अभी मुद्रा में बैठ जाएंगे और ओंकार करेंगे। प्रणव। प्रणव में अपनी सांसों को खुद देखिए, बड़ी शांति महसूस करिए, हंसते हंसते कि मैं शुक्राना है कि मैं पूरा का पूरा प्राणायाम क्रिया को कर पाया। गहरी सांस पर आवाज जरा भी नहीं, शुक्राना ही शुक्राना। अब हाथ ऊपर ले जाइए और रब करिए, हाथ को रब करिए दोनों को और ऊर्जा पैदा करिए और इसको अपने ऊपर ही डाल लीजिए। एक पॉजिटिविटी, एक ब्लेसिंग जो आपने अपने आप को देनी है, अपने शरीर को देनी है, अपने इंटरनल सेल्फ को देनी है। उसके साथ खुश होते हुए आंखें खोलेंगे। अब हम बैठ जाएंगे वज्रासन। जो लोग वज्रासन पे नहीं बैठ सकते, जो लोग चेयर पे बैठे हैं या जैसे भी उनको आराम लगे, तो उस तरह से अपने को करना है। ये हम मंडूकासन कर रहे हैं, समय की कमी है,
बहुत सारी बातें आज हमको बेसिक बतानी है, उसके लिए हम एक एक बार करेंगे, लेकिन ये 4 तरह के मंडूकासन आप 5 बार भी कर सकते हैं, 3 बार भी कर सकते हैं। डाइजेस्टिव पेनक्रियाज के लिए ये बहुत अच्छे, और आयुर्वेद में कहा जाता है कि हमारी सारी की सारी बीमारियां पेट से ही शुरू होती हैं, इसलिए पेट के डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक रखना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए, इस तरह से मुट्ठी रख के अपने पेट के नाभि के पास रखिए, नाभि के पास पूरे सीध में ये लाइन आनी चाहिए, और गहरी सांस लीजिए और धीरे 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 आप झुकते जाइए। हिप से झुकना है, कमर से नहीं झुकना, हिप से झुककर जब आपका चेस्ट नीज पे लग जाए वहां रुक जाइए, और आंख से आईब्रोज के बीच में देखिए, सीधा देखना है, गर्दन को नहीं झुकाना है इसमें। गहरी सांस लेते लेते ऊपर आ जाइए, और जल्दी से हाथ इस तरह से अपनी नाभि पे रखिए, और फिर से डाउन में सांस छोड़ते छोड़ते फिर से डाउन। इसी तरह से आईब्रोज के बीच में देखना है, आईज की एक्सरसाइज भी होती है उससे। पेनक्रियाज जो आपकी दब रही है इस समय, उनको इंटरनली स्ट्रेंथनिंग हो रही है। अब आप सांस लेते लेते ऊपर आ जाइए, अभी इस तरह से अंगूठे की दूरी से फिर से सांस छोड़ते 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 झुक जाइए। सर ऊपर रहेगा, आईब्रोज के बीच में देखना है। अब ऊपर आ जाइए। अब आपको हाथ ऊपर लेके जाने हैं, कान से टच करने हैं, और कान से हमेशा ही टच रहेंगे जब आप ऊपर भी आएंगे। तो देखिए, इस तरह हाथ ऊपर, धीरे धीरे नीचे गहरी सांस लीजिए, और नीचे छोड़ते छोड़ते हाथ कान से, अपनी बाहें हटेंगी नहीं, कान पर ही रहेंगी, और नीचे टिका दीजिए, नीचे टिका दीजिए। अब गहरी सांस लेते 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 लेते, लेकिन कान से हाथ नहीं उठेंगे, कान को टच करते करते ही ऊपर आना है। तो उससे आपका बिल्कुल पोस्चर वही रहेगा जैसा कि हमको चाहिए, और आदत भी हो जाएगी कि आप ये हिप से झुके, यानी कि इस तरह से नहीं झुके, आपको झुकना है इस तरह से, ऐसे। सो ये थोड़ा नोटिस करिए। वर्चुअली मैं आप लोगों को देख नहीं सकती हूँ, तो इसलिए अपने आप को खुद एजुकेट करना है। अभी हम सिंहासन करेंगे। इस तरह से हाथ रखिए। सिंहासन आप समझ लीजिए ये एक फेशियल है, यानी कि हमारे फेशियल एक्सरसाइज जो है वो इसमें पूरी हो जाती है। तो हम यहाँ माथे पर देखेंगे, आईब्रोज के बीच में जीभ को पूरी तरह से बाहर निकाल के थोड़ी पे लगाने की कोशिश करेंगे, और सिंह की तरह गरजेंगे। उससे हमारा गला भी साफ होगा, और सारी की सारी एक्सरसाइज को बिल्कुल तन्मयता से करेंगे। गले को सहला लीजिए थोड़ा सा। अब हम अपने ताली के साथ, यानी कि ये जितने पॉइंट्स हैं इसका एक्यूप्रेशर करेंगे। कॉन्शियसली जब आप करेंगे तो बिल्कुल वहीं ताली बजेगी, और इस तरह से ओंकार के साथ ताली बजाएंगे, और जोरदार तरीके से हंसेंगे। पूरी की पूरी हंसी, जब हम हंसते हैं तो सारा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाता है, और वो हम कॉन्शियसली भी करेंगे। तो ओम 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 ओम
आहा शांति, औषधय शांति, वनस्पति शांति, विश्वदेव शांति, ब्रह्मं शांति, सर्वं शांति, शांतिरेधि शांति, सामः शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। थैंक यू। ये हमारा प्राणायाम सेशन ख़त्म हुआ। ये 45 मिनट्स में ख़त्म हो जाता है, जिसमें हम 10-10 मिनट का अनुलोम विलोम और कपालभाति कर लेते हैं। और जब आप अकेले बैठ के मेरे वीडियो के साथ करेंगे तो आप बढ़ा घटा सकते हैं, लेकिन आज मुझे बहुत सारी बातें आपको बतानी है। जैसा कि पहले मैंने बताया, ब्लड प्रेशर के लोगों को बहुत ध्यान से शुरुआत करनी है, लेकिन आपकी बीमारी का जड़ भी यही है। ये जड़ से ख़त्म भी आपकी प्राणायाम से होगी, दुनिया की और किसी मेडिसिन से आपको आराम, टेम्परेरी आराम आता रहेगा। हर दिन आप दवाई खाते रहेंगे, आता रहेगा, लेकिन आपका इंटरनल सिस्टम की स्ट्रेंथनिंग आपकी प्राणायाम से ही होगी। अभी प्राणायाम सेशन ये जो हम कर रहे हैं रोटरी की तरफ से, ये जो क्लासरूम सेशन है, ये इसलिए है कि हमारे अंदर एक भावना जगे कि जिस तरह से हमें फ़ायदा हो रहा है, उस तरह से हमारे कांटेक्ट में जितने भी लोग आते हैं और जितने भी लोगों को हम कांटेक्ट कर सकते हैं, उन सबको आप प्रेरित करिए कि भाई 1 घंटा 1 आवर फॉर योर गुड हेल्थ, ये एक स्लोगन होना चाहिए ऊर्जा का, जो कि आप उनको दें और उनको गाइड करें कि किस तरह से वो इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। मैं फैक्ट्री ओनर और कंपनी ओनर्स, जहाँ पर कि 200-400 लोग काम करते हैं और बहुत सारे मजदूर भी काम करते हैं, उन लोगों को भी कहूँगी कि वो अपने HR के थ्रू ये भावना लोगों में जागृत करें कि उनकी सेहत बहुत बड़ी अनमोल चीज़ है और उसको संभाल के रखने के लिए ही भगवान ने ये बुद्धि दी है। सो बुद्धि को राइट जगह पर चलाना हमारा काम है। हमारे को अपना रूटीन दिन में 1 घंटा सेहत के लिए, तो ज़रूरी है कि आप रबर मैट पे बैठे या फिर एक मोटे गद्दे पे बैठे, खाली किसी जगह पार्क में जाकर या कहीं घास पे बैठ के आप प्राणायाम नहीं करना चाहिए आपको, क्योंकि हमारे अंदर इतनी ऊर्जा पैदा होती है, उसको अर्थिंग नहीं मिलनी चाहिए। अभी प्राणायाम कब करना सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा, वो है सुबह का टाइम। ये मैं इसलिए कहती हूँ क्योंकि हमको प्राणायाम और हमारे खाने के बीच में 3-4 घंटे का गैप चाहिए होता है, तभी हमारा जो खाली अंदर इंटरनल सिस्टम है, मशीनरी, उसको एक्सरसाइज मिलती है। क्योंकि अगर हमने खाना खाया हुआ है तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, आप चाहे कुछ भी कह लो, वो उसमें डाइजेशन में ही बिजी रहता है। उसको भी फ्री करना है, उसको भी शांत करना है, तब हम ये एक्सरसाइज करें तो बेस्ट रहेगा। और वो सुबह को हमें ये खाली पेट रहने का मौका मिलता है। लेकिन अगर आप शाम को करना चाहते हैं, आपको वही सूट करता है, तो आप दोपहर के खाने के बाद शाम की चाय में सिर्फ 1 कप चाय पी के फिर शाम को कर सकते हैं। तो ऐसा आपको अपना रूटीन खुद डिसाइड करना है, पर खाली पेट होना ज़रूरी है। और प्राणायाम के बाद 20 मिनट से आधा घंटे तक कुछ नहीं खाएं तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके अलावा प्राणायाम क्या है? प्राणायाम को हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज समझते हैं। हम सोचते हैं कि ये ऑक्सीजन को इनहेल करना है, लेकिन प्राणायाम असली माने में अपने प्राणों को जागृत करने की एक क्रिया है। तो पहले हम इस बात पे आएंगे कि मैकेनिकली जब हम कर रहे हैं तो वो सब सही हो जाए, स्पिरिचुअल लेवल पर हम बाद में पहुंचेंगे। धीरे धीरे आप देखेंगे कि मैं आपको हर सेशन में कुछ ना कुछ नया बताऊंगी, जिससे कि आप उस मोड में आ जाएं जो कि एक स्पिरिचुअल मोड कहलाता है। इसमें एकदम से पहुंचना पॉसिबल नहीं होता। और ये हमारा बेसिक प्राणायाम है। जो लोग हमसे नए जुड़े हैं उन लोगों के लिए ये पहला दिन है और उनको समझना है कि हवादार जगह पर ही बैठना है। हमारा ये पर्पस है कि हम अपने बॉडी को मैक्सिमम ऑक्सीजन दें। आजकल तो आप
फॉरेन कंट्री में ऑक्सीजन लेने के लिए स्पेसिफिकली लोग बाग सेशंस में ब्यूटी पार्लर की तरह जाते हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा ऑक्सीजन जो हमारे बॉडी में जाता है वो चाहे प्राणायाम के थ्रू जाए या मशीन के थ्रू जाए, उससे हमारे स्किन का एक एक सेल, हमारे इंटरनल सिस्टम का एक एक सेल जागृत होता है। और वो जब जग जाता है, यानी कि नॉर्मल हम जब सांस लेते हैं तो हमारे पूरे सिस्टम के 25% ही सेल काम करते हैं, वरना बाकी डॉर्मेंट हो जाते हैं, सेमी स्टेज पे पहुंच जाते हैं। तो हमको वहाँ से निकलना है, हमारा एक एक बॉडी का सेल जागृत हो जाए, वही हमारा इस घंटे का पर्पस रहता है। और जब ऊपर से लेके नीचे तक हमारे सारे सेल, यानी कि आर्मी ऑफ द सेल, वो बहुत अच्छे से काम करने लगती है, तो आपके अंदर एक इतनी ज़्यादा ऊर्जा आ जाती है कि आपको अननेसेसरीली लेटने का मन नहीं करता, आपको अननेसेसरी टाइम वेस्ट करने का मन नहीं करता, बिकॉज ब्रेन ऑल्सो गेट्स शार्पन। तो ब्रेन में भी इतनी क्रिएटिविटी आ जाती है कि आप कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। और दूसरी बात, 7 घंटे की जो नींद हम लेते हैं वो भी बहुत अच्छी नींद आती है। उम्र के साथ साथ नींद की भी प्रॉब्लम होने लगती है। ये सब इसलिए होता है कि शरीर में जॉइंट्स में बड़े सारे ब्लॉकेट्स हो जाते हैं, कैल्सिफिकेशन हो जाता है, हम ठीक से बैठ नहीं पाते, अपने नीचे के पैरों के शरीर को जोड़ने वाले जो जॉइंट्स है वो सारे जम जाते हैं। तो हमारा जो एक शरीर है वो सिर्फ चलता भर है, उसकी ऊर्जा तो फ्लो ही नहीं होती। तो ऊर्जा को फ्लो करने के लिए भी तो एक आसान रास्ता चाहिए, ट्रैफिक जैम्स को हटा देना है अपने शरीर से। तो ये मेरा इस प्राणायाम का पूरा संदेश है। मुद्रा में जो हम बैठते हैं वो 4-5 मुद्रा बहुत है, आप किसी भी मुद्रा में बैठ सकते हैं। इसके अलावा खाने की जो क्या दिनचर्या रहनी चाहिए, या बच्चे बूढ़े कब हमें शुरू करना चाहिए खाने के लिए, हमारा 3-4 नंबर का जो सीक्वेंस है उसमें मैं डिटेल से बताऊंगी। लेकिन फिर भी आप लोग लाइट खाना खाएं, बहुत अच्छा रहेगा। घर में पका हुआ खाएं, मैदा, चीनी और ज़्यादा नमक, ये तीनों चीज़ें ज़रा थोड़ी थोड़ी डाइट में कॉन्शियस हो जाइए। जितना ज़्यादा फल खा सके वो फल खाइए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके अलावा बच्चे बूढ़े कब हम शुरू करें? बच्चे 2 साल के बच्चों को भी आप अपने साथ बैठाना शुरू कर लेंगे ना, तो संस्कार की तरह उनके अंदर बीज पैदा हो जाएगा, उनको समझ आने लगा। आप ये मत सोचिए कि बच्चों को समझ नहीं आता, उनके साथ जोर ज़बरदस्ती मत करिए, सिर्फ उनको कहिए कि पास में बैठे, उनको शरारत करते रहने दीजिए, आप अपना प्राणायाम करिए। लेकिन ये बीज आपके परिवार के हर लोगों में पड़ जाए, वो बहुत अच्छा रहेगा। मेरे घर में जो सर्वेंट्स काम करते हैं उनके लिए हम शाम के टाइम 4-4:30 बजे एक स्पेशल सेशन, माय मदर एवरी डे डज इट फॉर दैट। सो हमारी भावना ये रहनी चाहिए कि हर आदमी को सेहत मिले, और सेहत से बड़ा मूल्यवान कोई भी चीज़ नहीं होती। सो उसके साथ मैं ये एंड करती हूँ।